چاہے وہ ایم آئی کے ذریعے ہوں، چاہے وہ آئی بی کے ذریعے ہوں، یا جو وہ کسی دوسرے بین الاقوامی ذرائع کو حاصل کر سکتے ہیں، ان تمام ذرائع کو، یا وہ لوگ جو اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی معلومات رکھتے ہیں انہیں طلب کرے، اور اس کو ہمیں اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن وہی تو سوال ہے کہ منطقی انجام کہاں تک لے کے جا سکتا ہے، کس کس کا انجام اس میں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ جو بات کی دونوں صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آپ بھی سے ایگری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو اس میں مورا منصور اجاز صاحب ہیں، اور وہ ریڈی ہیں آنے کے لیے پاکستان، ان کو بلائیں گے۔ دیکھیں جہاں تک چودھری احسن اقبال صاحب کا تعلق ہے، بات تو مقصد آخر میں جو انہوں نے کی وہی انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں، میں نے بھی وہی کی ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہی ہے۔ باقی ساری باتیں تو ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ میں فیصل آباد کے جلسہ عام میں تقریر کر رہا ہوں۔ یہ باقی جتنی باتیں انہوں نے کی ہے یہ ابھی تک فیصل آباد کے جلسہ عام سے واپس نہیں آئے۔ مثلاً کیا انہوں نے کہا کہ فوج حفاظت کرنے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں، وزیر اعظم، یہ ان کا وہ ایک کیسٹ انہوں نے بھرا ہوا ہے اور وہ ہر جلسے میں چلاتے ہیں۔ ابھی فیصل آباد سے میرا خیال ہے وہ واپس نہیں آئے، تو میں ان کی بات کی تائید کرنے لگا ہوں کہ یہ انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کے ساتھ جو اس وقت حکومت پاکستان کے تعلقات ہیں، شاید اتنے ان میں سرد موری پہلے کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب جا رہی ہے، اور وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے ہے۔ پاکستان کی سوورنٹی، یہ جب ہوگا بڑی گرم جوشی کے تعلقات لگ رہے ہیں۔ میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ سرد موری ہے۔ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان کے حوالے سے، مفادات کے حوالے سے کوئی بھی ایسا اقدام یہاں نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایک جو سلسلہ ہوا ہے اس میں تمام لوگ، اس میں ان کی تو آپ سے پولیٹیکل ریزن ہے وہ بول سکتے ہیں، لیکن آپ عوام کیا پچھلے کچھ دنوں میں ڈرون اٹیکس کے معاملے پہ آپ کی حکومت کے اوپر مسلسل تنقید ہوئی۔ ڈرون اٹیک پہ پھر چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر ایک بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں کہ تمام چیزوں میں لوگ سمجھتے ہیں، وکی لیکس آئی، اس میں آپ کی نہیں اور جماعتیں بھی آئیں، کہ شاید آپ لوگ جو ہیں تعلقات نیشنل انٹرسٹ سے بڑھ کے کسی اور انٹرسٹ پہ رکھتے ہیں۔ اور انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور انٹرسٹ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کوئی کارگل کا واقعہ تو نہیں ہے کہ وہاں جنگ بندی کے لیے اتوار کے دن بھی صدر کلنٹن کو وزیر اعظم پاکستان ملنے چلے جائیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ عوام کی حکومت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں اس بات پہ ہمارے ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہاں ایک، اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی یہی بات کی ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے، جب اس لیول پہ انکوائری ہوگی تو اس میں ہر لیول کو دیکھا جائے گا، ہر اینگل کو دیکھا جائے گا، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے۔ جب اس انکوائری کی فائنڈنگ آئیں گی تو وہ ساری قوم کے سامنے ہوں گی اور قوم کے سامنے پیش کی جائے۔ جیسے ابھی تک ہم 2 مئی کی انکوائری کا بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے گا انصار عباسی صاحب، انہوں نے بیچ میں کارگل کا بھی واقعہ لیا، آپ اتنے عرصے سے اس انویسٹیگیشن میں ہیں، پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی دیکھا آپ نے؟ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ دیکھیں اس قسم کا میمو تیار کر کے دینا اور پھر اس طرح کی بات کرنا، اب کون کون انوالو ہے یہ تو بعد میں اسٹیبلش ہوگا، لیکن اس میں 1-2 باتیں صرف میں کروں گا۔ ایک تو گورنمنٹ کو ہر حال میں چاہیے کہ حسین حقانی صاحب کی بڑی مہربانی کہ وہ پاکستان آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے جب تک کہ یہ کنکلوڈ نہیں ہوتا سب کچھ، اور پھر یہ ڈٹرمن کرنا ہے جو 4 لوگ بیٹھے تھے کہ یہ کتنا ان کی انوالومنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، کہ کیا ان کو کسٹڈی میں لینا ضروری ہے کہ نہیں۔ اٹ از آلسو فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا سیکیورٹی ایجنسیز ٹو ڈیسائڈ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا، لیکن ملک سے بھیجنا تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، وہ اپنے آپ کو والنٹیئر چونکہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو پاکستان کے اندر ہی رہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ دوسرا دیکھیں وڑائے صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ابھی جو بات کی انہوں نے بہت زبردست کی، جو پرائم منسٹر نے کیا بہت اچھا کیا، پریزیڈنٹ ان کو بلایا بہت اچھا کیا، لیکن ایک بات یہ ضرور یاد رکھیں کہ 10 اکتوبر کو یہ ہوا، انہوں نے رائٹ اپ لکھا انہوں نے اپنا فائنینشیل ٹائمز میں، یہ ایشو ڈیڈ تھا فار دا گورنمنٹ، ریپیٹڈلی ہم لکھتے رہے اور یہ مسئلہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے سیریس ہوا جب یہ ٹیک اپ کیا آرمی چیف نے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے سامنے۔ ابھی ریسنٹلی یہ 5-6-7 دن پہلے، اس سے پہلے اٹ واز اے نون ایشو
for the government. वैसे पीटीआई ने तो अपने जलसे में वहीं नहीं, पे पीटीआई जिक्र ने किया किया, था। अपोजिशन करती रही है, अपोजिशन बातें करती रही है, मैं ये बात ये नहीं कर रहा। स्टोरी छपी है जी। जी स्टोरी छपी है इसमें इकबाल साहब। जी फरिया, जिस दिन स्टोरी छपी है उसके अगले रोज नेशनल असेंबली हमने इसको रेज किया। नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, सही, कई प्रोग्राम्स अपोजिशन में करती रेज रही है। किया और हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सन्नाटा था, नहीं, denials मुकम्मल आए। खामोशी थी। और 3 हफ्ते के बाद इन्होंने कहा कि ये झूठ है, ये अफसाना है, इस तरह की कोई चीज नहीं है। फिर जब एडमिरल मुलन की तरफ से ये तस्दीक हो गई कि ये मेमो उनको मौसूल हुआ है, उसके बाद इसका फिर दोबारा जब खुला सिलसिला तो फिर हुकूमत ने दोबारा डिनाई किया। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता किसने लिखा है, क्या लिखा है। फिर खुद हुकूमत के वजीर दाखिला ने कहा जी एम्बेसडर और उनकी मंसूर एजाज की जो कन्वर्सेशन है उसका रिकॉर्ड हमें मिल गया है। और आहिस्ता आहिस्ता ये जब सिरे खुलते गए तो फिर मैं समझता हूँ कि अभी भी इन्होंने एम्बेसडर को कुर्बानी का बकरा बनाया। असल में इसकी अगर आजादाना तहकीकात हो तो पता चलेगा इसके कि कौन लोग जिम्मेदार थे। और ये एक ऐसी घिनौनी साजिश है। आप देखिए कि 2 मई के बाद भी इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर उस हमले की तारीफ में मजमून लिखे थे। आज तक तो हम ये कहते थे कि ये नाअहल हैं। इनकी नाअहली के साथ अब तो इनकी जो पॉलिसी है वो मुल्क की हुबुल वतनी के लिए खतरा बन गई है कि किस अंदाज में कितने बेरहम हो सकते हैं ये अपने सियासी मफाद के लिए कि मुल्क के मफादात और मुल्क के जो मुसल्लह और हसास इदारे हैं उनका भी ये सौदा करने के लिए तैयार थे और इस हद तक जाने के लिए तैयार थे। ये बात बहुत ही काबिल शर्म है हर पाकिस्तानी के। अगर सच्ची है और तो। एक ही बात देखें कि कितने यूएस ऑफिशियल्स हैं अभी, जब से हक्कानी साहब का नाम आया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तमाम के तमाम लोग उनके हक में स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो वो घास नहीं डालते, कोई मौका ज़ाया नहीं होता कि जी पाकिस्तान की ऐसी तैसी करें। लेकिन ये जब इशू आया, देखें फॉर व्हाट रीजंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? और मुलन साहब ने जो पहले कहा, पहले झूठ बोला उन्होंने। माइक मुलन ने इसीलिए हमने सवाल उठाया कि पहले उनको कैसे भूल गया, एकदम याद कैसे आ गया। हारून रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं आप? हुसैन हक्कानी साहब का इस्तीफा मंजूर हो गया, किस चीज का पेशखेमा है जी? हक्कानी साहब का इस्तीफा मंजूर हो गया। हारून रशीद साहब, क्या आगे समझते हैं आइंदा किस किस को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? आपकी आवाज असल में ठीक नहीं आ रही। जाहिर है इस्तीफा तो उनका मंजूर होना ही था। ये 3-4 दिन पहले से इस्टेब्लिश हो चुका था कि वो इसमें कसूरवार हैं। सारी उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और जाहिर है कि अब सिर्फ इस चीज की तहकीक होनी चाहिए कि क्या सरदार जरदारी इसमें मुलव्वस थे या नहीं थे। उनका तो तकरीबन ये अगर जो उन्हें हक समात मिलना चाहिए, अब ये चैप्टर क्लोज नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ही संगीन मामला है। होता यह है कि बहुत कोई संगीन वाक़या हो जाता है, हम उसको पे वक्ती तौर पर बड़ा हंगामा करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर उससे कौमी नफ्सियात पे खराबी पैदा हो जाती है कि लोग जुर्म करके बच सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। हुसैन साहब, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है हारून रशीद साहब कि ये बात तो 2-3 दिन पहले से पता चल गई थी कि उन्होंने इस्तीफा देना है, वो इसमें कसूरवार हैं। कैसे, किस चैनल से आपको इत्तला मिली, किस जराए से? किस चीज के कसूरवार होने की? इनके कसूरवार होने की उसमें कोई शुबा ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों को क्या अक्ल नहीं दी है? उसके बैनो सुतूर पे गौर करें। एक एक चीज बात है, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें। वो नेगेटिव आदमी है, हमेशा साजिश के लिए रखे जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी तो उन्हें मुखालफिन के लिए साजिश को रखा था ना। और ये जो साहब आपके पास बैठे हैं, इनको भी इसी कारोबार के लिए रखा था। और ये किस काम के लोग हैं? ये कोई डिलीवर तो नहीं कर सकते, कोई काम तो नहीं कर सकते। तो वो तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। अब इसकी तहकीक होनी चाहिए और जब तहकीक हो जाए तो फैसला होना चाहिए, इसलिए कि कौमी नफ्सियात पे इसमें बहुत बुरे असरात पड़ते हैं कि जुर्म करके लोग बच जाते हैं। जुर्म करके लोग बच जाते हैं। मैं वक्फे के बाद आके जवाब लेती हूँ, लेकिन जो मरासले की बात हो रही है, एक दफा दोबारा हम आपको कहेंगे मेमो के अहम नकात में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मगर उसमें सिविल हुकूमत फौजी आर्मी की तरफ से तब्दीलियों के लिए दबाव की ताब नहीं ला सकती। अगर सिविल हुकूमत को बजोर ख़त्म कर दिया गया तो पाकिस्तान उसामा बिन लादेन की बाक़ियात का मस्कन बन जाएगा। जनरल कियानी को सख्त, फौरी और बराह रास्त पैगाम दिया जाए। जनरल कियानी और जनरल पाशा से सिविल निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिशों को बंद करने का कहा जाए। अगर आपने ऐसा किया तो सिविल हुकूमत की तंजीमें न होगी। और बहुत सारे पॉइंट्स के अलावा एक बड़ा अहम नुकता उसमें यह है कि नई सिक्योरिटी टीम पाकिस्तानी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के साथ
जौहरी प्रोग्राम के लिए एक काबिल कबूल फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तैयार है। नई कौमी सिक्योरिटी टीम ISI के सेक्शन S को ख़त्म कर देगी। इंतहाई ख़तरनाक बातें इस मेमो में लिखी गई हैं। तहकीकात से पता चल सकेगा कि क्या हकीकत है और क्या फसाना। मगर जाते जाते मतनाज़ा मरासले की वजाहत के लिए हुसैन हक्कानी साहब ने पाकिस्तान आते ही शायरी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हुसैन हक्कानी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर लिखा कि जुनू में जितनी हम पे गुजरी बेकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। फिर उन्होंने इफ्तिखार आरिफ का ये शेर भी तहरीर किया, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सुरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जबकि कुछ देर पहले उन्हें ट्विटर पर ही एक पैगाम लिखा है कि मैंने बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर अपना इस्तीफ़ा मंजूर करने की दरख्वास्त की है। मैं अदम बर्दाश्त और तासुब के खात्मे के लिए काम करता रहूँगा। ट्विटर पर ही हुसैन हक्कानी के पैगामात देखकर मुख्तलिफ बातें कमेंट्स भी लोग दे रहे हैं, मगर ये लग रहा है कि वापस बुलाए जाने पर वो शिकवा कर रहे हैं। मगर ये समझ नहीं आ रही कि उनका शिकवा है किससे, सदर साहब से, पाकिस्तान आर्मी से या मंसूर एजाज साहब से। वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। अगर वो बिल्कुल झूठ होता तो रेजिग्नेशन की कोई मेरा नहीं ख्याल कि तुक बनती थी। सो मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत ही सीरियस हो गया इशू, और अब इट इज़ ऑल द मोर रिक्वायर्ड कि जी हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पहले इन्वेस्टिगेशन हो जो कि टेक्निकली साउंड लोग इन्वेस्टिगेट करें। ये इंतहाई संजीदा मसला है और बड़ा इसमें हाई पावर्ड कमीशन बनना चाहिए। बराह रास्त उनको सदर मुमलिकत अपना ब्रीफ दिया करते थे, और मैं समझता हूँ कि इस मामले की अगर आज़ादाना तहकीकात होंगी तो जिसे कहते हैं कि इसका जो खुरा है या इसका जो निशान है, पैरों के जो फुटप्रिंट्स हैं, वो ऐवान सदर तक जाएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इस वक्त होने वाली इंतहाई अहम सियासी डेवलपमेंट। हुसैन हक्कानी साहब का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में अब हम इस बात को क्या समझेंगे, किस तरफ इशारा कर रही है इम्तियाज सदर साहब। यही बात हारून रशीद साहब ने भी कही कि ये बात तो पता थी 2-3 दिन में कि शायद वो गिल्टी हैं। कोई आप लोगों के पास भी ऐसी इंफॉर्मेशन है? अगर ये बात थी, वो लिखते रहे अपनी कहानियों में, वो कह रहे हैं कि हमने ये बात रेस की, आपकी हुकूमत ने इतना संजीदगी से क्यों नहीं लिया इस मामले को? हुकूमत ने संजीदगी से लिया है और प्रॉम्प्टली एक्शन हुआ है। वो 2-3 दिन पहले 2-3 दिन पहले क्या पता था? नहीं, 2-3 दिन पहले उनको क्या पता था? अब वो कह रहे हैं हमें पहले से पता था। इजाज मंसूर साहब का जो एविडेंस मिला है वो रेफर कर रहे थे। इजाज मंसूर ने जो एविडेंस दिया ना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने थे, कर लें फिर। वो क्या एविडेंस पे एक मिनट बात, वो जो उन्होंने सारा अपना ब्लैकबेरी का सारी जो डिटेल्स दी थी कि इस वक्त ये हुआ, इस वक्त फोन कॉल हुई, ये मैसेज गया, ये मैसेज आया, वो काफी मेरा ख्याल है आपके ख्याल से वो काफी ऑथेंटिक था। लेकिन उसके बारे में कहते हैं कि वो शायद पहले ही दे चुके थे शुजा पाशा साहब को। लेकिन आप अपनी बात अभी हारून रशीद साहब कह रहे थे, मैं भी उसी बात को आगे लेकर जाता हूँ कि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और इसमें इसको हम ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे। ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और इसीलिए रिजाइन हुआ है। वो बात तो आपने बिल्कुल कह दी, बात सुन ले, लेकिन एक बात सुन ले, एक मेरे भाई इधर बात मैं जब मुकम्मल कर लेने थे, ये आप कर लें फिर। मेरे भाई कह रहे थे कि ये तो जनाब खुदा फलां जगह जाता है, फलां जगह जाता है ये, और सिक्योरिटी के हवाले से हमें सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तो पाकिस्तान के लिए जाने भी कुर्बान कर दी, भट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो ने, और पाकिस्तान खपे की बातें भी हुई। हमें ये बड़ा पता है कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं। हमें किसी मुस्लिम लीग नून के MNA की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पेचीदा मसला है। मंसूर एजाज का सबका कैरियर एक अमेरिकन वो शहरी है और उसका सबका जो कैरियर है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा कैसे हो सकता है कि इस किस्म का मीमो जो है जो इस किस्म के मैं नहीं समझता कि कोई भी एक मामूली अकल का बंदा भी इस किस्म का रिटर्न चीजें भेज सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश हुई है और हम समझते हैं कि ये एक साजिश हुई है और साजिश जो है वो एक ऐसे हुई है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनको आपस में मुकाबले में लाके खड़ा कर दें। जहाँ तक हमारे भाई कह रहे थे नहीं करे कि साजिश नहीं लग रही, मुझे मुकम्मल कर लेने दे, फिर मैं एक दो फिक्र। मैं इदारों की लड़ाई से मैं कह रहा हूँ, देखें ये मसला जैसे ही इनके लिए सीरियस है
वैसे ही मेरे लिए, वैसे ही आर्मी के लिए। हाँ, तमाम कोई के भी लिए। शख्स देखें अगर हाई ये ट्रीजन तो होता है इकट्ठे करने तो ये इदारों वाली बात, लड़ाई वाली जो है ना, हमें देखिए- मिलिट्री वाली, ये एंगल देना गलत है वैसे। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ इसमें ना ये एंगल कि नहीं देना हम समझते हैं कि हमारे आर्मी जो है, हमारा एक कौमी असासा है।